स्टेट के बारे में कौन सी टर्म जो है ठीक है, तो स्टेट के बारे में जो टर्म ठीक है वो ये है, द स्टेट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनिट टेरिटरी. द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट. The principle of proportionate equality was first enunciated by the Aristotle. What is the role of the chief minister in the state executive in terms of the exercise of executive powers? So the chief minister provides political leadership and coordinates the activities of the council of ministers. How many seats did the Dravid Munitra Kajagam DMK get in the 18th Lok Sabha elections in 2024? 2022. Which of the following best characterizes nationalism in Indian political thought during the independence movement, a movement for the self-governance and unity despite diverse cultural backgrounds? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, हाउ डू आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट चैलेंज द नोशन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन इंडिया? Identity based movements challenge the centralized power structure, demanding greater political autonomy and self-governance. उसके बाद फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना 1954 में, सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 में, इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट टू 1998 में, 26/11 मुंबई टेरर अटैक ये हुआ था 2008 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस ये नहीं है. बाकी जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन आवर in the Lok Sabha, approval of government bills laws by the parliament, no confidence motion against the council of ministers. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, अरेंज करना है इन इवेंट्स को रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. Adoption of the Indian Constitution establishing state legislatures, the first imposition of President's rule in Kerala, the establishment of the Sarkaria Commission on the Center-State Relations, abolition of the Jammu and Kashmir Legislative Council. When the Legal Service Authorities Act 1987 was amended in to provide for the establishment of the permanent Lok Adalats to the public utility services, तो क्या हो जाएगा, 2002 हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे जो है क्या देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है, पर गलत कुछ है ही नहीं, तो जो चीज़ ठीक है वो देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR is the leading international agency coordinating refugee problems. It is a UN agency mandated to aid and protect refugees, forcibly displaced communities and stateless people, and to assist in their voluntary repatriation, local integration or resettlement in a third country. 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol to Refugee Convention deal with the right of refugees. उसके बाद which among the following fundamental rights is or are available only to the citizens of India but not to the foreigners? Prohibition of discrimination on the grounds of race, religion, caste, gender or place of birth, protection of freedom of assembly, protection of freedom of movement, protection of life and personal liberty. ये नहीं है. बाकी जो है विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द फॉरेनर्स, वो कौन कौन से हैं? एक तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ असेंबली और प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. ये तीन चीज़ें हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे रिगार्डिंग आइरिस मैरियन यंग्स कंसेप्शन ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप के बारे में बताना है. तो इट रिजेक्ट्स यूनिफॉर्म राइट्स एंड इंस्टेड एडवोकेट्स ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स फॉर द माइनॉरिटीज. Who among the following is considered to be the interpreter of the pure theory of law? तो वो हो जाएगा हंस कैल्सन. How does the neoliberal economic agenda impact the political representation of lower economic classes in India? तो वो होएगा neoliberal reforms have led to the depoliticization of economic issues, marginalizing lower economic classes in the political disclosure. Keshwananda Bharati case established the basic structure doctrine. Indira Gandhi versus Raj Narayan case upheld the rule of law and free and fair elections. Minerva Mills case जो है limited parliament's power to amend the constitution. Bombay case जो है वो क्या है, affirmed secularism as part of the basic structure. आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, the president of India has the authority to convene a session of parliament at any location he deems appropriate. उसके बाद yet it is not required to hold all three sessions and there is no prescribed minimum number of days for the parliament proceedings in a year. Next, which of the following statements is true?
तो द इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इन 1971 was a significant event in India-USSR relations. India has consistently supported the One China policy throughout its diplomatic relations with the People's Republic of China. Which of the following is not a type of party system according to the Giovanni-Sartori's classification? तो बैलेंस्ड और इफेक्टिव प्लूरलिज्म नहीं है, बाकी सिंगल पार्टी सिस्टम, लिमिटेड और मॉडरेट प्लूरलिज्म, एक्सट्रीम और पोलराइज्ड प्लूरलिज्म, ये सभी जो है वो है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे द वेरिएशन विद इन द कंट्रीज इज ऑफन लार्जर देन द वेरिएशन बिटवीन द कंट्रीज एंड द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ नेशन स्टेट्स आर नॉट होमोजीनियस, कोहेरेंट और कम्पैक्ट. तो ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, ठीक है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेंडर इन द रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? जेंडर कंसिडरेशंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिकल एजेंडाज इन द स्टेट्स. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसमें से ये बताना है कि कौन सा जो है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. द न्यू राइट इज कंसर्न टू एडवांस द कोज ऑफ लिबरलिज्म अगेंस्ट डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पॉसिबल यूजेस ऑफ स्टेट पावर. तो ये भी बात गलत है. एंड द फ्री मार्केट डज नॉट ऑलवेज ऑपरेट परफेक्टली एंड इट्स बेनिफिट रेडिकली आउटवेव्स इट्स डिसएडवांटेजेस. ये भी बात क्या है, गलत है. Which of the following are a correct representation of the features of conservative political theory? तो human imperfection, organic society and tradition, ये हो जाएगा. नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे मतलब ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया को सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है. तो वो है खोंड अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग, ताना भगत मूवमेंट एंड मीज़ो अपराइजिंग. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, सोशल मूवमेंट के बारे में बात करनी है. तो अ डेलिब्रेट कलेक्टिव एंडेवर टू प्रमोट चेंज इन एनी डायरेक्शन and by any means not excluding violence, illegality, revolution or withdrawal into utopian community. Social movements can be viewed as collective enterprises to establish a new order of life. And social movements are those organized efforts on the part of excluded groups to promote or resist changes in the structure of society that involve recourse to non-institutional forms of political participation. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 has stipulated the following major provisions regarding the Panchayat. A Gram Sabha may exercise such powers and perform such functions at the village levels as the legislature of a state may by law provide, and a finance commission to be constituted every 5th year by the governor of a state to review the financial position of the Panchayat and to make recommendations to the governor. And उसके साथ an election to constitute a panchayat shall be completed before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution. Next है यहाँ पे consider the following statements regarding the NEM. तो इसमें क्या हो जाएगा, the NEM presently has a membership of 120 countries and 18 NEM summits have been held up to now. उसके बाद next जो है वो क्या है यहाँ पे, next है यहाँ पे असम अकॉर्ड के बारे में. So the Assam Accord was signed in 1985 between the Government of India and the leaders of the Assam movement to address the issue of illegal immigration in the state. All foreign nationals who entered Assam after March 24, 1971 were to be identified and deported, and the National Register of Citizens (NRC) exercise in Assam was conducted as a direct result of the Assam Accord. ठीक है, ये जो है ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, आइडेंटिफाई ट्रू फैक्ट्स अबाउट द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो कौन से हैं? ईस्ट एशियन समिट फाउंडेड इन 2005, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 2001, नॉर्डिक काउंसिल फाउंडेड इन 1952 एंड एशियन रीजनल फोरम फाउंडेड इन 1994. उसके बाद यहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन और इसके इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग नेशन, वो क्या है? तो डेवलपिंग नेशंस फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस अंडर ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ट्रेड इम्बैलेंसेस एंड लिमिटेड एक्सेस टू द एडवांस टेक्नोलॉजी. उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताना है कि आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस के बारे में जो चीज़ ठीक है वो ये है कि ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस इंक्रीजेज द सिटीजन्स इनपुट इनटू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. Constitution of India allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure the equality among the religious communities. The Constitution provides to all the individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any.
or the Constitution of India advocates the titles of military or academic distinction for the citizens of India. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक तरफ दे रखा है प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ दे रखा है गवर्नमेंट. तो चंद्रशेखर नेशनल फ्रंट, देवी गौड़ा यूनाइटेड फ्रंट, और अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. उसके बाद मनमोहन सिंह में क्या हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द केपी फाबियन व्हाट शुड बी द इंडियाज अप्रोच टू द वर्ल्ड वाइल रिटेनिंग इट्स आइडेंटिटी, ओपन टू द वर्ल्ड वाइल रिटेनिंग इट्स आइडेंटिटी. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्राइवेटाइजेशन में रिड्यूस स्टेट कंट्रोल एंड इंक्रीज द कॉम्पिटिशन. उसके बाद लिबरलाइजेशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज ट्रेड बैरियर्स फॉर द ग्लोबल इंटीग्रेशन. सोशल वेलफेयर, इसमें क्या हो जाएगा, प्रमोट बेसिक सर्विसेज एंड सोशल इक्विटी. What does governor do while exercising his legislative powers under Article 213 of the Constitution of India? तो वो हो जाएगा issues ordinances. Which statement are true regarding the function of the UPSC? तो it is consulted for the principles to be followed during the promotions and appointments and advising the government on any matter referred to the commission by the President of India. उसके बाद next जो है वो क्या है, one of the most fundamental influences of Indian politics is caste. तो ये बात क्या है, ये बात है true. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, कास्ट प्रोफाइल्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स और कंसिडरेशन ऑफ कास्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स बाय द पार्टीज टू फाइट इलेक्शंस एंड लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. एंड सेकंड, सपोर्ट बेसिस ऑफ कास्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज आर टू वेज दैट कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, integrated judicial system has been established under the Indian Constitution, and this unitary system of judiciary is derived from the Government of India Act 1935, and the provision relating to the Supreme Court in the Constitution is described under the Articles 124 to 147. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO. तो इसमें हो जाएगा द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 and the Shanghai Cooperation Organization primarily focuses on the regional security, economic cooperation and cultural exchange, and the headquarters of the Shanghai Cooperation Organization is located in the Beijing, China. And उसके बाद the Shanghai Cooperation Organization includes both Central and Asian and South Asian countries as members. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, the non-aligned movement established in 1961 sought to create a geopolitical bloc that opposed the domination of the Cold War superpowers and advocated for a third way independent of both the United States and the Soviet Union. उसके बाद what best distinguishes political theory from the ideology? Political theory gives the fullest region possible for a certain standpoint, while ideology often short circuits reason and reduces principles to formulae. अरेंज करना है पोजीशन ऑफ डिग्निटरीज एज गिवन इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स. हायर टू लोअर पोजीशन जो दे रखी है, तो वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, उसके बाद होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सार्क समिट और दूसरी तरफ दे रखे हैं डेट. तो जो ढाका है वो है 10-11 अप्रैल 1993, न्यू दिल्ली जो है वो है 2-4 मई 1995, और उसके बाद जो कोलंबो है, कोलंबो हो जाएगा 29-31 जुलाई 1998, इस्लामाबाद क्या हो जाएगा 2-6 जनवरी 2004. उसके बाद आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट फैक्ट्स अबाउट द GATT गैट और WTO. तो इसमें जो है जो इनकरेक्ट फैक्ट्स हैं गैट और WTO के बारे में वो हमें नहीं देखने, जो गैट और WPA के बारे में जो चीज़ ठीक है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो चीज़ ठीक है वो ये है कि फ्रॉम 1948 to 1994 द GATT and provided the rules for much of the world trade, and GATT was a provisional agreement and organization, and the WTO was created on 1 January 1995. उसके बाद यहाँ पे अरेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, प्रोविजंस को एज पर देयर इंक्लूजन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा प्राइमरी पर्सेस एबोलिश्ड, फिर स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, फिर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर हो जाएगा प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन फॉर द विमेन इन द लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट्स और उनके टेन्योर्स दे रखे हैं. तो आंध्र प्रदेश, ये क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा 18 जनवरी 1973 टू 10 दिसंबर 1973. ऐसा तो नहीं है,
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो असम। असम में क्या है, 30 जनवरी 1981 से 13 जनवरी 1982। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, असम में, असम जो है 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। हिमाचल प्रदेश, सॉरी आई एम सो सॉरी। सबसे पहले देखो एक बार फिर से, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है 18 जनवरी 1973 से 10 दिसंबर 1973। असम, असम का देखें तो 30 जनवरी 1981 से 13 जनवरी 1982। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का देखें तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। उत्तराखंड का देखें तो 18 मार्च 2016 से 6 मई 2016। ये क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल रहे हैं इन स्टेट्स में इतने टाइम तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे कमेटीज़ दे रखी है पंचायती राज की, और इसको जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर उसके बाद GVK राव कमेटी, फिर उसके बाद LM सिंघवी कमेटी, फिर उसके बाद जो है PK ठुंगन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में बताना है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये दे रखा है ट्रीटीज़ या फिर एग्रीमेंट्स, और दूसरी तरफ दे रखा है उनका ईयर। तो यहाँ पे जो है अंटार्कटिक ट्रीटी, अंटार्कटिक ट्रीटी जो है 1959 में, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABM जो है ये क्या हो जाएगा 1972 में। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये क्या हो जाएगा 1967 में, और लिमिटेड टेस्ट इवेंट ट्रीटी जो है ये क्या हो जाएगा 1963 में। व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो blend of idealism and realism, value of tolerance, anti-imperialism and anti-colonialism, और neighborhood first diplomacy। नेक्स्ट जो है वो क्या दे रखा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनवाइल ऑस्टिन, और बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स, कॉम्परेटिव फेडरलिज्म इसमें हो जाएगा नीति आयोग, क्वाजी फेडरल इसमें क्या हो जाएगा KC वियरे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स और इनेक्टमेंट ईयर्स जो है इनके दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा हमारा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, इसमें 1954 में इनेक्टमेंट ईयर है ये। डिक्लेरेशन ऑन द टॉर्चर ये क्या हो जाएगा 1975 ईयर। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये क्या हो जाएगा 1990, और चार्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन ये क्या हो जाएगा 2000। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 342A, और उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंटर स्टेट काउंसिल आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 244। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू द फैसिलिटीज फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Provisions related to the languages are mentioned in Article 368. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज न्यू रियलिज्म डिफर फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म इन इट्स अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स? न्यू रियलिज्म हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ अनार्किक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स while classical realism focuses on human nature as the root of the conflicts. How does postmodernism challenge the concept of sovereignty in the international relations by deconstructing and problematizing the idea of fixed and absolute sovereignty? उसके बाद इनसाइड आउट अप्रोच क्लासिकल रियलिज्म हो जाएगा, आउटसाइड इन अप्रोच जो है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म हो जाएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिव गेन जो है वो रियलिज्म हो जाएगा, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट गेन जो है वो क्या हो जाएगा लिबरलिज्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के रिगार्डिंग देखना है। तो जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म व्यूज़ है, इंटरनेशनल सिस्टम एज एन इनहेरेंटली कन्फ्लिक्चुअल ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द स्टेट्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, feminist perspectives in international relations seek to highlight the experiences and contributions of women in shaping diplomatic processes, and feminist approaches advocate for the inclusion of women's voices in the decision making to create the more inclusive and effective international policies. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंडिया इज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद EEC, एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप वाज अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2004, एंड द यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द FDI फॉर द इंडिया।